Good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 11 pronouns of our English language book on Stone. Students, in our last video, our topic was 4 type of pronoun reflexive pronouns. So students, included this topic, we have read the definition of reflexive pronouns with its example and with its some noted point. And students, today we are going to continue this topic reflexive pronouns. And students, today's our topics are, our first number topic is reflexive pronoun chart. And students, our second number topic is question answer of reflexive pronoun. So students, included these topics today, we shall read firstly reflexive pronoun chart and then we shall read and solve some question of reflexive pronouns in our today's class. Okay, so all students, please press partial listener class and listen to my words clearly. Let's see reflexive pronoun chart. Students, reflexive pronoun chart, it's mean निर्वाचित सर्वनाम chart. Students, we can see in this chart that here are 3 columns. Okay, students, so first number column, it's a column of person, it's mean vyakti. Second number column, it's a column of subject pronoun, it's mean karta sarvanam. And students, this is your third and last column and it's a column of reflexive pronoun, it's mean nijvachak sarvanam. Okay, students, included the first person, we can see that here are 2 subject pronoun. Okay, your first number subject pronoun is I in singular form and we in plural form. Okay, तो स्टूडेंट्स कर्ता सर्वनाम में एक वचन में जो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है मैं, और प्लूरल फॉर्म में बहुवचन रूप में आपका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है कर्ता सर्वनाम में वो है वी, इट्स मीन हम. ओके, एंड स्टूडेंट्स the reflexive pronoun of I is myself in singular form and the reflexive pronoun of we is ourselves in plural form. Okay, तो I का reflexive pronoun क्या होता है? myself. Okay, and we का reflexive pronoun ourselves. Okay, I means मैं, we means हम. And students, myself and ourselves, the mean of both reflexive pronoun is स्वयं या खुद या अपने आप. Okay, तो माई सेल्फ और अवर सेल्फ दोनों का मीन क्या होता है? स्वयं या अपने आप या खुद ही. क्लियर स्टूडेंट्स? इंक्लूडेड द सेकंड पर्सन, वी कैन सी दैट हियर आर 2 सब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, यू इन सिंगुलर फॉर्म एंड यू इन प्लूरल फॉर्म. ओके, तो यू जो होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों में ही समान है. ओके, तो हमारे जो सेकंड जो पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है? यू होता है, इट्स मीन आप. ओके, और सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में ही यू का यू ही रहता है, सेम रहता है. ओके, सिंगुलर फॉर्म में भी यू है और प्लूरल फॉर्म में भी यू ही है. ओके, सेकंड पर्सन में. एंड स्टूडेंट्स, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ यू इज योरसेल्फ in singular form and the reflexive pronoun of you is yourselves in plural form. Okay, तो you का जो reflexive pronoun है singular form में वो है yourself. Okay, and reflexive pronoun जो you है इसका जो reflexive pronoun है plural form में वो क्या है? yourselves. Okay, students, look clearly that firstly here we are adding self self. Okay, जब singular form में हमने you का reflexive pronoun write down किया तो SELF सेल्फ ऐड किया, और जो प्लूरल फॉर्म में हमने यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन राइट डाउन कर रहे हैं तो SELVES को ऐड करके हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन राइट डाउन किया यू का. क्लियर स्टूडेंट्स? योर लास्ट थर्ड नंबर पर्सन, students, included the third person, we can see that here are 4 subject pronoun in singular form, he, she, it and one. And students, we can also see that here are only 1 subject pronoun in plural form, they. Okay, तो students, जो हमारा थर्ड पर्सन होता है इसके इंक्लूडेड जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं कर्ता सर्वनाम होते हैं सिंगुलर, इट्स मीन एक वचन में, वो होते हैं ही, सी, इट एंड वन. ओके, ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स होता है वह. स्टूडेंट, द मीन ऑफ बोथ प्रोनाउन ही एंड सी इट सेम है. ओके, ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है. ओके, बट स्टूडेंट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोनाउन ही एंड सी. ओके, बिकॉज स्टूडेंट वी ऑलवेज यूज ही फॉर मेल. ओके, हम हमेशा मेल के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं, मैन के लिए और बॉयज़ के लिए हमेशा ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. एंड वी ऑलवेज यूज सी फॉर फीमेल, हम हमेशा फीमेल के लिए सी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ओके, फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए हमेशा सी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? इट्स मीन होता है यह या वह. ओके, एंड स्टूडेंट वी ऑलवेज यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, प्लेसेस. ओके, एंड स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट वर्ड इज वन. ओके, वन स्टूडेंट्स, वन मीन्स क्या होता है? एक होता है ना, ओनली वन, इट्स मीन एक. बट स्टूडेंट्स हियर वन इट्स अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन है. ओके, एंड स्टूडेंट्स इट्स अ थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन है. एंड स्टूडेंट, जो थर्ड पर्सन के इंक्लूडेड जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है वन, इट्स मीन, इसका मीन है, द मीन ऑफ वन इज वन मैन और वन वुमेन और वन बॉय और वन गर्ल. ओके, तो वन का मीन होता है एक आदमी, एक औरत, एक लड़का या एक लड़की. ओके, तो स्टूडेंट वन मीन्स होता है किसी या कोई. ओके, तो स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट वन मैन, वन वुमेन, वन बॉय और वन गर्ल, देन वी यूज वन प्रोनाउन. ओके, तो हम वन सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी प्लूरल वर्ड
दे। ओके, दे मीन्स क्या होता है वे। ओके, एंड इट्स आवर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है इन प्लो फॉर्म में है, जो बहुवचन में है दे मीन्स वे। Students, let's see reflexive pronoun of these pronouns. Students, the reflexive pronoun of he is himself, the reflexive pronoun of she is herself, the reflexive pronoun of it is itself, and the reflexive pronoun of one is oneself. Okay, and since the mean of these reflexive pronoun himself, herself, itself, oneself is same, इन सभी का जो मीन है, मतलब है अर्थ है, वो सेम है, एक ही जैसा है, समान है। इन सभी का मीन होता है स्वयं, खुद या अपने आप। क्लियर? Students, your रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ दे इज देमसेल्व्स इन प्लो फॉर्म। ओके, तो दे जो हमारा एक सब्जेक्ट प्रोनाउन था प्लो फॉर्म में, ओके, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या है? देमसेल्व्स। एंड स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ देमसेल्फ इज स्वयं, खुद या अपने आप। क्लियर? सो स्टूडेंट, वी हैव रीड this reflexive pronoun chart and I hope you must have understood this reflexive pronoun chart. You have no problem in this reflexive pronoun chart. Okay students, now we are going to read and solve questions of reflexive pronoun. Okay, so students, let's see. Your first number question is, when do we add self to pronouns? Okay, when means कब, do it's your present indefinite tense helping verb in pro form, we means हम, add means जोड़ते हैं self, self to pronouns it's mean सर्वनामों में। ओके, ये सर्वनामों के साथ। When do we add self to pronouns? It's mean कि सर्वनामों में हम self को कब जोड़ते हैं। ओके, SELF self कब जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि कुछ pronouns के एंड में हम self ऐड करते हैं SELF self, और कुछ pronouns के एंड में हम self SELVES को ऐड करके रिफ्लेक्सिव pronoun बनाते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव pronoun हम कैसे बनाते हैं? जो pronouns होते हैं हमारे उसके एंड में जब हम self 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 या self SELVES को ऐड कर देते हैं तो हमारे रिफ्लेक्सिव pronoun हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है व्हेन डू वी ऐड सेल्फ टू प्रोनाउंस। इट्स मीन कि सर्वनामों में हम सेल्फ को कब जोड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी ऐड सेल्फ टू प्रोनाउंस व्हेन आवर प्रोनाउंस आर सिंगुलर। ओके, वी मीन्स हम, ऐड मीन्स जोड़ते हैं सेल्फ SELF सेल्फ टू प्रोनाउंस इट्स मीन सर्वनामों में। ओके, व्हेन मीन्स जब, आवर मीन्स हमारा, प्रोनाउंस मीन्स सर्वनाम, आर मीन्स है, सिंगुलर मीन्स एक वचन। ओके, वी एड सेल्फ टू प्रोनाउंस व्हेन आवर प्रोनाउंस आर सिंगुलर। जब हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम जो हमारे होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, ओके, एक वचन होते हैं, तो उनके एंड में हम सेल्फ को जोड़ते हैं, SELF सेल्फ को जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ओके, क्लियर? लेट्स सी अच्छा एग्जांपल्स देख लीजिए आप। जो हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी, हमारा जो सब्जेक्ट प्रोनाउन था आई, ओके, तो ये सिंगुलर था ना, तो हमने इसके एंड में क्या जोड़ा था? SELF सेल्फ जोड़ा था ना। एंड स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकेंड पर्सन का जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन था यू, ओके, जब ये सिंगुलर था तो इसके एंड में हमने सेल्फ जोड़ा था, SELF सेल्फ को ऐड किया था। अंडरस्टैंड? तब हमारे थर्ड पर्सन के इंक्लूडेड जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन थे सिंगुलर फॉर्म में ही, सी, इट एंड वन, तो इनके एंड में हमने सेल्फ SELF सेल्फ को ऐड किया था, है ना। तो स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोनाउंस जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जो एक वचन रूप में होते हैं, उनके एंड में हम SELF सेल्फ को जोड़कर उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं। क्लियर? Students, your second number question is, when do we add selves to pronouns? Okay, when means कब, do it's your present indefinite tense helping verb in plural form, we means हम, add means जोड़ते हैं selves 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 to pronouns. Okay, it's means सर्वनामों में। तो students, your second number question is, when do we add selves to pronoun? It's mean कि सर्वनामों में हम SELVES selves को कब जोड़ते हैं। Students, your answer of this question is we add selves 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 to pronouns when our pronouns are plural. Okay, तो स्टूडेंट्स, वी मीन्स हम, एड मीन जोड़ते हैं SELVES सेल्फ टू प्रोनाउन इट्स मीन सर्वनामों में, व्हेन मीन्स जब, आवर मीन्स हमारा, प्रोनाउंस मीन्स सर्वनाम, आर मीन्स है प्लूरल इट्स मीन बहुवचन। ओके, तो वी ऐड सेल्फ टू प्रोनाउंस व्हेन आवर प्रोनाउंस आर प्लूरल इट्स मीन कि जब हमारा प्रोनाउन प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो हम उसके एंड में SELVES को ऐड करके हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं उस प्रोनाउन का। क्लियर? इसलिए लेट्स एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन के इंक्लूडेड जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन था प्लो फॉर्म में, वी था ना। ओके, तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर एडिंग SELVES सेल्व्स, ओके, इन दिस प्रोनाउन अवर जो हमारा प्रोनाउन है, ओके, और ये जो अवर इट्स अवर पजेसिव प्रोनाउन ऑफ वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या था? अवर था। इसके एंड में हमने SELVES को ऐड करके हमने क्या किया? इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया। क्लियर? स्टूडेंट, सेकंड पर्सन के इंक्लूडेड जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन था वो था यू था। ओके, जब प्लूरल था तो हमने क्या ऐड किया था? स्टूडेंट, हियर वी आर एडिंग सेल्व्स SELVES सेल्व्स। ओके, तो हमने सेल्व्स को ऐड करके हमने इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया था ना प्लो फॉर्म में। एंड स्टूडेंट्स, हमारे थर्ड पर्सन के इंक्लूडेड जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन था प्लो फॉर्म में वो दे था ना, तो जो प्लूरल था, ओके, तो हमने इसके एंड में क्या ऐड किया था?
हमने प्रोनाउन के साथ में क्या ऐड किया था, SELVES सेल्फ्स, क्लियर। तो इससे ऐसे प्रोनाउन जो हमारे सिंगुलर होते, एक वचन होते, उनके एंड में हम SELF सेल्फ को ऐड करके उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करते। और ऐसे प्रोनाउंस जो हमारे प्लूरल होते हैं, ओके, तो उनके एंड में हम सेल्फ्स SELVES सेल्फ्स को ऐड करके उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, we have read reflexive pronoun chart and we have read and solved these questions of reflexive pronoun in our today's class. And students, I hope you must have understood about reflexive pronoun chart and you must have also understood these questions. You have no problem in this topic reflexive pronoun which we have read in our today's class. Okay, now students, I am going to describe your class in homework, so all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that note down reflexive pronoun chart and solve these questions in your FAL English language notebook with your best handwriting. It's your today's classwork, and students, today's homework is that learn reflexive pronoun chart and these questions of reflexive pronoun from your FAL English language notebook. It's your today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, note down reflexive pronoun chart and solve these questions of reflexive pronoun in your FAL English language notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.